Very good morning, everyone. So, today we are going to start chapter number 13, that is magnets. Magnets, you all have seen the magnets, and nowadays these magnets are being used in everywhere. सबने अपनी न्यू अलमीराज तो देखी होंगी। अलमीराज में जो स्टॉपर्स होते हैं या जिससे वो बंद होती हैं, तो एक डोर में लगा होता है आयरन मेटल, और अलमीरा के एंड पे लगा होता है मैग्नेट। फिर जब हम बंद करते हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है आयरन की तरफ, एंड द डोर गेट्स क्लोज्ड, है ना। सो दिस इज़ हाउ द मैग्नेट वर्क्स। सो अगर हम कहें देन व्हाट इज़ अ मैग्नेट? मैग्नेट इज़ अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड और दैट अट्रैक्ट्स द magnetic items. So this magnetic field is not visible, दिखाई नहीं देता है, but it is responsible for some properties of a magnets, जैसे मैग्नेटिक चीज़ों की तरफ, मीन्स आयरन जैसी आयरन से बनी हुई चीज़ों की तरफ फोर्स लगता है, या तो वो उसको अट्रैक्ट करता है या वो उसको repel करता है. So if we talk about the discovery of magnet, so as told in your book also, that it is said that there was a shepherd, गडरिया बोलते हैं, शीप चराने वाला, जिसका नाम था मैंगनीज, and he used to live in Magnesia in ancient Greece. He used to take his herd of sheep, अपनी भेड़ और बकरियां जो है वो साथ के माउंटेन्स पे ले जाता था। तो उसके साथ उसके पास एक स्टिक भी होती थी, एंड बाय चांसली वो जो स्टिक थी उसके एंड पे नीचे आयरन लगा हुआ था, आयरन अटैच्ड एट वन एंड। एंड वन डे जब वो उसको लेकर जा रहा था, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड। उसकी स्टिक को ले जाने के लिए, मतलब उसकी स्टिक को उठाने के लिए उसको उस पत्थर के ऊपर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। मीन्स कुछ ऐसा था जिससे वो स्टिक खिंच रही थी। एंड जब बाद में देखा गया कि वो क्या था, वो मैग्नेट क्या था, then it was found that the rock was a natural magnet, and what happened that it attracted the iron tip of the shepherd's stick, and it is said that this is how natural magnets was discovered. And because the black rock was founded by manganese and in Magnesia, that's why it was named as magnetite. So magnetite in Magnesia rocks contain large number of black stones जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, एंड वी कॉल दोज ब्लैक स्टोन्स एज लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन ancient Greek and Chinese people discovered the additional property of this magnetite, and the additional property was that it used to point out in one particular direction. That means कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम धागे से बांधकर फ्रीली लटका दें तो इट यूज टू पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट करते दिखता है. So today it is known as mineral magnetite Fe3O4 and is found in many countries. Discover होने के बाद. So now if we see about the type of magnets, we can say that we are having two types of magnets, that is natural magnet and artificial magnets. So natural magnet आपने अभी देखा, जो अभी सुना, that lodestone is a naturally occurring magnet. So the magnet which occur naturally, nature में जो हमें मिलता है, we call those magnet as naturally occurring magnets. Natural magnets जो होते हैं, they do not have any definite shape, and उनका जो attractive force होता है ऑब्जेक्ट्स को लेकर, means आयरन को भी अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है वो बहुत थोड़ा होता है. Then we are having artificial magnets.
the substances by which the properties of a natural magnet is imparted by artificially, means which are made artificially, or we call those magnets as artificial magnets. And we can use metals like iron, nickel, steel, cobalt for making these good artificial man-made magnets. And these come in various shapes and sizes, like you are having in there in your book also: magnetic bar, horseshoe magnet, magnetic needle, then ball magnet, circular magnets. These all are artificial magnets. So you can see these type of magnets over here: circular magnet, ye ball magnet, this red one is the horseshoe magnet, and this is bar magnet, ring magnet, circular कह लो, ring कह लो. These are the type of magnets. So now we are going to see the type of artificial magnets. Type of artificial magnets में we are having two types of magnets, that is permanent magnet and temporary magnet. A permanent magnet में, when we talk about these magnets once made remains as magnets for a long period of time. Means artificial magnets, जो natural magnet होती है, that is in permanent magnet. But in artificial magnets we can now make these permanent magnets as well as temporary magnets. So permanent magnets are made from steel, cobalt, alnico दो तीन alloys, दो तीन metals का alloy है. Alloy means mixture of 2-3 metals. जैसे al means aluminium, ni means nickel, co means cobalt. Alnico. Same is the alloy as titanol. These are the materials which are used for making permanent magnets. So we can also use the magnetic properties for storing information in devices like you are having cassette tapes, computers, कंप्यूटर डिस्क, CDs जो होती है ना, या फिर मैग्नेटिक टेप्स हो गई. देन टेम्परेरी मैग्नेट्स की अगर हम बात करें, देन दीज आर द मैग्नेट दैट वंस रिमेन एज मैग्नेट only for a short interval of time. Means if I am passing the electric current, when I switched on and the electric current start flowing, it start behaving like a magnet. But as soon as I stop that current, then that magnetism will also ends up, and that will not behave like a magnet. Then these are known as electromagnets, which are the temporary magnets and which run with the electric current. Then the materials with which these temporary magnets are being made are soft iron and nickel. And an electromagnet behaves like a magnet when electric current flows through it, and as I switch off the current, it loses its magnetic property too. Fine. So now see the electromagnet. This is the simplest electromagnet which you can prepare at your home also. देखो एक बड़ा आयरन नेल लिया है, उसके ऊपर कॉपर वायर लेके वाइंड अप कर दिए. इतने दिखाई दे रहा है कि कैसे किया है. Then we have to join the both ends with the battery. And but जो ends आप बैटरी के साथ अटैच करोगे उसको आपको थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा, बिकॉज उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, तो आपको वो क्लीन करना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट दिस आयरन नेल will behave like a magnet, and as it is no magnet is there and it is working with electric current, that why it's known as electromagnet. See the another way of making electromagnet, and with a simple dry cell which you use in your remote or toys or wall clocks. See ये इसका circuit है. Coiled wire is there, iron nail is there, ये wire है, ये बैटरी है. बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से आप जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं. Now we are coming on the uses of electromagnet. और इलेक्ट्रोमैग्नेट
इज अ कॉयल, है क्या, एक कॉयल है इंसुलेटेड वायर की, विच इज बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी हाई। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, जब हम बहुत ज़्यादा करंट पास करते हैं, देन इट्स strength also increases. Electromagnets are used in mobile cranes for lifting or transferring magnetic materials like scraps of iron. Yeah, I'll show you in the diagrams also, in the pictures also. Then we used it in electric bell, then loudspeakers, then microphones, and then telephones. See, जो इसके एंड पे जो ऊपर लगा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही बटन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, this will behave like a magnet, and very strong magnet. See the scrap it's carrying out. ये स्क्रैप, ये मैग्नेट कैरी कर रहा है, देखो पूरे, जैसे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, तो ये मैग्नेट इस तरीके से सारा उसके अंदर से मेटल खींच लेता है। नाउ द सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिक बेल। ये जो कोइल्ड वायर आपको बीच में दिखाई दे रही है, दिस इज द मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ पोल इसी से बनाया गया है। सी लाइक दिस इज ऑल्सो मैग्नेट। I'll show you the magnet. ये this one is a magnet, साउथ एंड नॉर्थ पोल बनाया गया है। फाइन, so this is also the circuit of electric bell. And then this is the microphone, जो आपने माइक्रोफोन देखा था। माइक्रोफोन में भी आपको दिखाया गया है कि दिस इज मैग्नेट, और जो कॉयल चढ़ी हुई है इसको, उसके ऊपर भी मैग्नेट है, ठीक है। देन इधर कोन है और इधर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोफोन, सॉरी दिस मैग्नेट। देन दिस इज द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में नीचे मैग्नेट है, जैसे जैसे करंट पास होता है लाउड स्पीकर ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ये सर्किट, ये अप होता है ऐसे, फिर ये डाउन होता है, फिर ये अप होता है, ये डाउन होता है। सो इस तरीके से ये इसमें से एयर भी क्रॉस होती रहती है और वॉइस की जो है वाइब्रेशंस बनती रहती हैं। सो देन दिस इज द फ़ोन में भी यहाँ पे मैग्नेट है। देखो, नंबर 1 पे आपका डायफ्राम है, नंबर 2 पे कार्बन ग्रैन्यूल्स हैं, देन नंबर 3 पे डायफ्राम है अगेन, एंड दिस नंबर 4 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस नंबर 4 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज़ द ट्रांसमिटर ऑफ द टेलीफोन। फाइन। सो अब अगर हम देखें परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस भी है। दिस इज परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, जो बार मैग्नेट होता है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होता है, हार्ड मटेरियल का बना होता है। स्ट्रेंथ जो होती है उसकी कांस्टेंट ही होती है, उसको हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, किसके, परमानेंट मैग्नेट के। और परमानेंट मैग्नेट्स के पोल्स भी चेंज नहीं कर सकते, मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वही रहता है। सो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से कम होती है हमेशा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो वो, इट इज़ अ टेम्परेरीली मैग्नेटाइज्ड एंड इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है हम वेरी कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, और वो इससे काफ़ी हाई होती है। द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी ऑल्टर्ड, हम उसको जिस शेप में डालेंगे उस तरीके का मैग्नेट बन जाएगा। एंड देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल कह लो या क्रेन कह लो, दिस ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड दिस इज़ द सोलेनॉइड कॉयल जो होती है ना, जो आयरन के ऊपर हमने वाउंड अप की थी, दैट इज़ नोन एज सोलेनॉइड। So this was the difference between electromagnet and permanent magnet. Now I am coming on magnetic and non-magnetic materials. Now see these, the magnetic and non-magnetic materials. Materials which get attracted towards magnets are called magnetic materials, जैसे copper, iron, nickel, ये तीनों चीज़ें जो हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं।
Magnets can attract or repel other magnets and can attract any magnetic material if it is not magnetized. तो मैग्नेट्स जो होती हैं वो अगर मैग्नेट को मैग्नेट के साथ ही हम देखें तो वो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोल्स, पोजीशन ऑफ द पोल्स। अभी देखते हैं पोल्स क्या होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, जिनका मैग्नेट के ऊपर कोई असर नहीं होता, उसको हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द मैग्नेट। टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। हम एक कंपास लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास हमने लिया, फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज मैग्नेटिक और नॉट। तो अगर हम उसको मैग्नेटिक कंपास को, नीडल को किसी भी सब्सटेंस के पास रखेंगे और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मीन्स वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही दिखा रहा है अपनी डायरेक्शन, दैट मीन्स वो नॉन मैग्नेटिक है। और अगर वो उसकी निडल मैग्नेट की निडल के पास मैग्नेट के पास आती है, उसकी निडल एकदम डिफ्लेक्ट होके उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? देन टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। देखो, टेक अ मेटल एंड अ नॉन मैग्नेट, ब्रिंग वन मेटल ऑफ अ मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मेटल बार। आप मेटल बार के पास एक मैग्नेट लेके आए हो, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ। अगर तो दोनों एंड्स मैग्नेट के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इफ बोथ एंड्स ऑफ द मैग्नेट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मेटल बार, तो बार इज नॉट अ मैग्नेट। बट अगर एक एंड जो है वो अट्रैक्ट होता है, मीन्स अगर मैं साउथ की तरफ, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर मैं नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाऊंगी तो वो उससे दूर भागेगा। अगर मैं साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाऊंगी तो भी वो दूर भागेगा। बट इफ़ आई यूज़ द ऑपोजिट पोल्स की, मीन्स नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास और साउथ पोल को नॉर्थ पास लेके गई, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज द बार मैग्नेट। So next, then there is a topic in your book that is the strength of a bar magnet or horseshoe magnet. फिर उसका बार ग्राफ भी बनाया है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट आप कैसे करेंगे? जो स्ट्रेंथ है मीन्स आप बहुत सारी पेपर क्लिप्स अटैच कीजिए, पेपर क्लिप्स को लेके आइए और उसको मैग्नेट के दोनों पोल्स के ऊपर अटैच कीजिए और डिफरेंट मैग्नेट्स लीजिए, कि एक आपने बार मैग्नेट ली, एक आपने होर्सशू मैग्नेट ली, फिर बॉल मैग्नेट ली, फिर रिंग मैग्नेट ली। तो इसी तरीके से आप उनका देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्लिप्स एक तो जुड़ते हैं वो पोल्स पे जुड़ते हैं, बीच में नहीं जुड़ते। देन कौन सी स्ट्रॉन्ग है आप बड़े उससे निकाल सकते हो कि अगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी वो सबसे ज़्यादा क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगी। देन द मैग्नेटिक कंपास इज देयर। मैग्नेटिक कंपास, दिस इज द मैग्नेटिक कंपास इन द पिक्चर। मैग्नेटिक निडल होती है इसके अंदर और निडल के साथ एक डायल होता है, डायल जिसके ऊपर डायरेक्शंस लिखी होती हैं। और जब ये जो इसके अंदर का जो पॉइंटर होता है ना, जो निडल है, वो बहुत फ्रीली फ्लो करती है, तो ये हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग काम करती है। इसको अगर हम रख देंगे आराम से जहाँ पे भी, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। सो द निडल इज माउंटेड ऑन अ लो फ्रिक्शन पाइवट पॉइंट, मीन्स उसके बीच में बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होती, बिल्कुल हिलती, हवा का भी फर्क पड़ता है उस पर, इसलिए उसको ग्लास, इसमें ग्लास केस में बंद करके रखते हैं। ओके, दिस इज देयर एट योर पेज नंबर 213। सो जो, और ये इट वर्क्स ऑन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट एज इट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। तो कंपास की जो कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक निडल
pivoted at its center, सेंटर में से जुड़ी हुई है, and free to rotate on a horizontal plane. Needle is fitted in horizontal box. उसके ऊपर ग्लास कवर है ताकि उसको हवा भी तंग ना करे. So in order to locate the directions at a place, the compass is placed away from one other magnet or iron piece. किसी और भी मैग्नेट से दूर रखना पड़ता है इसको. I hope that it is clear, and some 2 topics are remaining that we will do in next class. Thank you very much.